بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ رانا ثناء اللہ بھی جوتا کلب میں شامل ہو گئے ہیں اور رانا ثناء اللہ پر بھی جوتا برسا دیا گیا ہے، جو کہ ایک واقعی مذمت والی بات ہے۔ لیکن ہوا کیا معاملہ اور کس طریقے سے پنجاب اسمبلی کے باہر معاملات خراب ہوئے، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کا گھیراؤ کر لیا ہے وکلا نے۔ ایک تو وکلا کے جو لیڈر ہیں اور سابق صدر بھی ہیں بار کے، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو وکلا کا ایک کافی عرصے سے تنازع چلتا آ رہا تھا، اب وکلا بھی شدید ان کے جو مظاہرے ہیں ان میں شدت آ گئی ہے، اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جو ججز گیٹ ہے اس پر دھرنا دے دیا ہے اور گھیراؤ کر لیا ہے۔ اور آج جب لاہور ہائی کورٹ کے ملازمین کو بھی جانے سے جو گھر جان جب شام کو چھٹی ہوئی تو ان کے لیے بھی جانا بہت مشکل ہو گیا، اور وہاں حالات کافی کشیدہ ہیں اور پولیس بھی تھی۔ صبح کیا ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ کراچی میں مختلف اضلاع کے حد بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی جو درخواستیں ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے درخواستیں مسترد ہونے کے بعد یہ معاملہ آیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ میں کل جو جج صاحب تھے انہوں نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی تھی اور حکم امتناع جاری نہیں کیا تھا۔ آج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی عدالت میں سماعت ہوئی تو اس پر عدالت میں مختلف اضلاع کی حد بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ درخواست میں صوبائی الیکشن کمیشن، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔ ایم کیو ایم کے وکیل نشاد وارثی نے آج اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر یوسیز اور ٹاؤنز کی حد بندیوں سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی محمد شیخ نے کہا کہ آپ نے جو نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے اس پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ ایم کیو ایم کے وکیل نے کہا کہ سندھ حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے غیر منصفانہ حد بندیاں کی ہیں۔ ضلع غربی میں یوسیز اور ٹاؤنز کی تشکیل غلط اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ ایم کیو ایم کے وکیل نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن، مومن آباد، فیصل کارونی میں حلقہ بندیاں غیر منصفانہ ہیں۔ ایم کیو ایم کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اپلیٹ اتھارٹی نے بھی ہمارا موقف نہیں سنا، یہ غیر منصفانہ عمل ہے، اگر حلقہ اور حد بندیاں درست نہ ہوئیں تو انتخابات منصفانہ نہیں ہوں گے۔ سماعت کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے مختلف اضلاع کی حد بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا۔ بیسیکلی ایم کیو ایم کو یہ لگتا ہے کہ اگر اب الیکشن ہوا تو ہمارے لیے جیتنا مشکل ہے، اور ہمارے اوپر ایک چاہے وہ پی ٹی آئی کا میئر ہو یا لاڈلوں کا بلاول زرداری، جو طاقتوروں کا لاڈلا ہے بلاول زرداری، وہ اپنا میئر لے آئے، تو ایم کیو ایم کو یہ دونوں منظور نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے یہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ 15 جنوری کا جو الیکشن ہے وہ اس کو ملتوی کیا جائے۔ اب چونکہ بلاول زرداری کی خواہش پر پہلے دو دفعہ الیکشن کمیشن الیکشن ملتوی کر چکا ہے، اب تیسری دفعہ بلاول زرداری کو جب یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو ہم میئر بنا دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، جیسے دھڑا دھڑ بلوچستان سے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے، کل وہ لوگ جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اپنے حلقوں میں کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو شامل کروایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کیا کریں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ طاقتور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا اب اگلا جو انتخاب ہے وہ بلاول زرداری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کے بعد اب اس پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، اور ان کو یہ امید دلائی گئی ہے بلاول کو کہ آپ الیکشن میں جائیں، آپ الیکشن جیت جائیں گے۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ ضمنی الیکشن میں جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیتی ہے جس میں عمران خان کھڑے تھے، اور اس میں عمران خان 5000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، اور اچانک سے ایسا کچھ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی، تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے 2018 کے الیکشن میں آخری رات خواجہ آصف کو سیٹ دی گئی، رانا ثناء اللہ کو سیٹ دی گئی، تو پھر ہمارا جو نظام ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے قبل صوبے میں افسران کے تقرر اور تبادلوں اور سیاسی ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی سے متعلق درخواستوں پر چیف سیکرٹری کو بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ جو رپورٹ جمع کروائیں گے اس کے ساتھ اپنا ذاتی بیان حلفی بھی لگائیں کہ اگر آپ نے اس پر عمل درآمد نہ کیا تو پھر آپ نوکری سے جائیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سندھ میں افسران کی تقرریاں، تبادلے اور سیاسی ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی سے متعلق پی ٹی آئی رہنماؤں اور شہری خادم حسین کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکلا نے موقف دیا کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد
तकरीरें गैर कानूनी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत के 2 सेक्रेटरीज ने अदालत को बताया था कि किसके कहने पर तकरीरी तबादले कर दिए गए। एजी साहब अदालत को बताया था कि तबादले वापस ले लिए गए हैं, लेकिन मीडिया में कुछ और बता रहा है। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अभी तक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं हटाया गया, वो अपने दफातर ही नहीं छोड़ रहे और वो अपने दफातर में आज भी बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि क्या नाजिर को मुकर्रर कर दें। अब नाजिर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की तकरीरी चेक करेगा, अदालती जो नाजिर है, अदालती नुमाइंदा। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि खिलाफ ज़ाब्ता तकरीरें और तबादलों के अहकामात वापस ले लिए गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी बयान हल्फी जमा कराएं कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद जितने भी तकरीरें और तबादले हुए हैं वो पहले तो ये बताएं कि कितने तकरीरें और तबादले हुए हैं और उनको हटा दिया गया है, ये रिपोर्ट जमा करवाएं और अपना ज़ाती बयान हल्फी भी साथ लगाएं और 11 जनवरी को ये रिपोर्ट अदालत में पेश करें, ताकि अगर जो बयान हल्फी झूठा हुआ तो उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और चीफ सेक्रेटरी के लिए फिर ये जो चीज़ें हैं ये फिर जो है वो नौकरी चली जाएगी, चूंकि उसका बयान हल्फी सामने आ जाएगा। अब ये चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा अफसर होता है किसी भी सूबे में, और वो अगर तो बिलावल जरदारी को बचाएगा। हाँ, अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मामलात और उनसे रिक्वेस्ट कर ली जाए तो और बात है। अगर बयान हल्फी दे दिया गया तो ये फिर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें पिटिशनर है, तो ये इनकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये मामला फिर आगे बढ़ता जाएगा और बहुत मसाइल होंगे फिर चीफ सेक्रेटरी के लिए और उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। फैसलाबाद और पंजाब का जो बड़ा सनती शहर है फैसलाबाद, ला कानूनियत बढ़ने लगी है। फैसलाबाद में फायरिंग के 2 वाकयात हुए हैं। साबिक सदर और उनके ड्राइवर समेत बार एसोसिएशन के, फैसलाबाद बार एसोसिएशन के सदर का कत्ल किया गया है और ये एक बहुत बड़ा एक वाकया है। वो सीनियर एडवोकेट भी थे और बड़े शरीफ नफ्स आदमी थे। घुमन साहब, उनका बार में बहुत थोड़े लोग हमने देखे हैं कि जो प्रोफेशनल वकील हों और जो वाकई जिनको ओरिजिनल वकील कहा जा सकता है और वो बार के नुमाइंदे भी बने। हालांकि हमने देखा है कि ज़्यादातर जो माफियाज हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स, उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको इलेक्शन लड़वाते हैं, उसके बाद फ़ायदे लेते हैं, या वो नून लीग के पे रोल पर काम करते हैं या वो पीपल्स पार्टी के पे रोल पर काम करते हैं। और ये जो जमातें हैं, स्पेशली ये 2 जमातें, इन्होंने हमेशा ये काम किया है और इन्होंने सारी चीज़ों को देखा है। अभी हसन न्याजी की जानिब से, जो इमरान खान के भांजे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो ताकतवर हैं, लाहौर के ताकतवर, जिनके ऊपर पहले भी इमरान खान इल्ज़ाम लगा चुके हैं, वो लाहौर बार के इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ तो चीज़ें फिर इस तरीके से चलती हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि ये तगड़ा ओहदा है और जो वकला का नुमाइंदा है या जो बार का सदर या ओहदेदार है वो हमारा बन जाए। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और वकला की जानिब से इस सारे मामले पर कल एहतजाज का ऐलान किया गया है और इसमें टांक में भी एक वकील को गोली मारी है, उनका भी कत्ल किया गया है और ये फैसलाबाद के साबिक सदर को कत्ल किया गया है। और इस कत्ल में कोई दुश्मनी है, कहा यह जा रहा है कि नामालूम अफराद, वो सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि वो सरेआम दिन में गोलियां मारते हैं और बाइक पे बैठ कर चले जाते हैं और ये एक निज़ाम है। लेकिन बहरहाल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार होना चाहिए। दूसरी जानिब वकला का जो मामला है, राना आसिफ जो कि मेंबर है पंजाब बार कौंसिल का, जिसको जस्टिस मलिक शहजाद ने सज़ा सुना दी थी, गौन तब्दील कर रहा था अदालत में, कमरा अदालत में खड़ा होकर, जिस पर अदालत ने कहा था कि यहाँ गौन तब्दील ना करें, बाहर जाके गौन तब्दील करें, जिस पर उसने कहा, वो बाहर चला गया, वापस आया जब उसका केस कॉल हुआ और उसको रिलीफ मिल गया, जो जमानत लेने आया था उसको जमानत मिल गई। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि अदालत को कहा कि आपने बदतमीजी की है और आपने मेरे साथ गलत बिहेवियर किया है। जज भी आगे फिर मलिक शहजाद हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और वहाँ मामलात फिर ख़राब हो गए। ये हमद खान ग्रुप के हैं जो राना आसिफ जो मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के, वहाँ जज साहब ने खड़ी जगह पे उनको सज़ा सुना दी 3 माह की तौहीन अदालत में। अब उस पर फिर वकला ने एहतजाज शुरू कर दिया। वकला ने पहले लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, वकला ने कहा कि इनकी सज़ा मुअत्तल की जाए। अदालतों ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप जब तक सरेंडर नहीं करेंगे आपकी सज़ा मुअत्तल नहीं होगी। वहाँ से फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सज़ा बरकरार रखी कि जब तक मुअत्तल नहीं होते। अब कहा यह जा रहा था जजेस की जानिब से कि एक दफ़ा इनको 10 मिनट के लिए गिरफ्तार करवा दें, उसके बाद सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी कि सरेंडर किया है। लेकिन वकला कहते हैं कि जी नहीं, वो गिरफ्तार नहीं होगा, मेंबर है वो पंजाब बार कौंसिल का, वो क्यों गिरफ्तार हो। इस पर फिर वकला की जानिब से आज
दोपहर से ही लाहौर हाई कोर्ट का जो जजेस गेट है, मॉर रोड पर जो जजेस गेट है, उसके बाहर घेराव कर लिया, धरना दे दिया। और बहुत बड़ी तादाद में, चूंकि 14 जनवरी को लाहौर बार का इलेक्शन होने जा रहा है, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उनको गैदरिंग मिल गई है। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको साथ लेके मॉर रोड पहुंच गए। वहां पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ और जो वहाँ पर लोग हैं, कुर्सियाँ आ गई, शामियाने आ गए, वहाँ पर खाने तकसीम होना शुरू हो गए वकला की जानिब से, और बहुत बड़ा जो है वो जजेस गेट के सामने धरना शुरू हो गया वकला की जानिब से। सुबह 10:30 बजे उस धरने में जो इजलास बुला लिया गया है, वकला की जो नुमाइंदा बॉडी है उसका जो जनरल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया, और कल फैसले होंगे आगे कैसे मामलात को लेकर चलना है। अब चूंकि कल लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस पर समाअत होने जा रही है। एक परवेज इलाही की दरखास्त पर 5 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है, एक इमरान खान की दरखास्त पर 1 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है, वो तोशा खाना में जो ओहदे से, जो चेयरमैनशिप से हटाने के हवाले से। तो ये जो चीज़ें हैं वो वकला के धरने से अदालती अमले को भी बाहर निकलने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हालात वहाँ काफ़ी कशीदा रहे और पुलिस तैनात रही। जबकि दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह की जानिब से और अता तारड़ और ये लोग असम्बली में पहले गए, और इनकी जानिब से जब असम्बली में ये घुसे तो MPS की जानिब से उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाजे खुलवाए और इनकी गाड़ियाँ असम्बली में दाखिल करवाईं। तो वहाँ पर किसी शहरी ने, आम शहरी ने जूता जो है वो लहराया और राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर मारा। जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर जूता लगा राना सनाउल्लाह के सामने, और उस पर राना सनाउल्लाह की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA का ड्राइवर है और उसने जूता मारा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं, वो हमारा ड्राइवर नहीं है। बहरहाल जो वहाँ पर फिर मुस्लिम लीग नून के MPS थे, उन्होंने उसको शदीद ज़दोकोब भी किया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो ये कह रहा है कि राना सनाउल्लाह भी जूता क्लब में शामिल हो गए हैं। और मेरे ख्याल में जो वो 2 दिन से हालात वहाँ कशीदा कर रहे थे, तो ये भी उसकी कोई कड़ी नज़र आती है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का में नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।